Hello students, we have already started with applications of derivative. Today we are going to see its application, maxima and minima. Before we start with the application, we should know what do we mean by a maxima and minima. So let's start with the definitions of these two. So the definition of maxima of a function fx. A function fx is said to have a maxima at x equal to c if the value of the function at x equal to c is greater than any other value of fx in a delta neighborhood of c. That is, for a small delta greater than 0 and for x belonging to open interval c minus delta comma c plus delta, we have f of c is greater than f of x. Now the definition says that suppose you are given a function fx and at x equal to c, if the function is to have maxima, then in a delta neighborhood, we are going to consider a delta neighborhood. Delta is a small value, so एक neighborhood हम consider करते हैं of this value c. और ये जो डेल्टा नेबरहुड है इसके अंदर हमारे जितने भी fx के वैल्यू है, all the values of fx should be smaller than the value of f of c. Then we can say that at this point c you are going to have a maxima of the function fx. The value f of c is called a maximum value of f of x. Thus the function fx will have maxima at x equal to c if f of x is increasing in c minus delta less than x less than c and increasing in c less than x less than c plus delta. Now let's see what does this mean. Let us take a function. Suppose this is our function given to us. अब हम क्या करने वाले हैं? We are going to take a value c over here. Suppose this is our value of c. राइट और हम इसका डेल्टा नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज द डेल्टा नेबरहुड ऑफ दिस फंक्शन c. अब हमें देखना है कि हमारे c फंक्शन के लिए मैक्सिमा वैल्यू है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, ये c से छोटा वैल्यू लेंगे, दैट वैल्यू इज ऑन दिस साइड and we'll put it in our function fx. Then we are going to take some value on this side, we'll put it in the function fx. अब हमें क्या मिलना चाहिए, at this particular value we are going to get f of c, right? और यहाँ पे वैल्यू है वो है c माइनस डेल्टा, राइट? हियर वी आर हैविंग c प्लस डेल्टा वैल्यू. अब c माइनस डेल्टा वैल्यूज जो यहाँ पे वैल्यूज है उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इंक्रीजिंग. सी द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. लेकिन अगर हम c प्लस डेल्टा के लिए वैल्यू देखेंगे द वैल्यू शुड बी डिक्रीजिंग. सो इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए और यहाँ से यहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए. And then we can say at this particular value c, fx can have a maxima at the value c. This is the definition. Let's look at the definition of minima of a function fx. So a function fx is said to have a minima at x equal to c if the value of the function at x equal to c is less than any other value of fx in a delta neighborhood of c. तो डेल्टा नेबरहुड के अंदर आप कोई भी और एक वैल्यू ले लेते हो जो c से बड़ा छोटा कैसे भी हो और आप fx के अंदर पुट करते हो, राइट? एंड एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू यू सी दैट all the values are less than the values of f of c. f of c से सभी values कैसे होने चाहिए, less than. Then we can say f of x is going to have a minima at that particular point. That is, for a small delta greater than 0 and for x belonging to c minus delta comma c plus delta, this is the open interval, we should have f of c value is smaller than all f of x value. Then this c is a minima. The value of f of c is called a minimum value of f of x. तो अगर आप fx का वैल्यू निकालते हो at the point x equal to c, then that value is called as the minimum value.
And the next one is, thus the function f of x will have minima at x equal to c if f of x is decreasing at c minus delta less than x less than c and increasing in c less than x plus delta. अब देखते हैं, let us take a function again. So now we are taking a function like this. Suppose ये हमारा value है x equal to c, right? Here we are having the delta neighborhood. तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये है c माइनस डेल्टा वैल्यू. सो दीज आर c माइनस डेल्टा वैल्यू. हियर वी हैव c प्लस डेल्टा वैल्यू. इफ यू लुक एट इन द कार्टेशियन सिस्टम ये ऐसा होगा, ये वैल्यू बड़े हैं, ये वैल्यू छोटे हैं. अब अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हो और आप fx के अंदर पुट करते हो, राइट, and you find out the value over here, so that value is nothing but f of c value. You also find the value on this side of the interval, that is c से बड़े वाले values हैं. Then what do you get? You should get f of x is decreasing. तो यहाँ पे ये decreasing होना चाहिए on this side and it should be increasing on this side. ये side से ये increase होना चाहिए. Then we can say that x equal to c point will be a minima point for f of x. Let's look at some more things about maxima and minima. Now, if we are having f dash of c is equal to 0, then at x equal to c, the function is neither increasing nor decreasing. Such a point on the curve is called as the turning point or stationary point of the function. Any point at which the tangent to the graph is horizontal is a turning point. Now what does this say? प्रीवियसली जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें मिला था एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर x के जगह पे अगर आप कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको मिलता है एफ डैश ऑफ c शुड बी ग्रेटर देन 0, तो आपको मिलता है द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट द पॉइंट c. उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए मिला था हमें एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0. अगर आप c पॉइंट के लिए इसको कंसिडर करोगे तो आपको मिलता है एफ डैश ऑफ c शुड बी लेस देन 0. देन वी गेट डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ हमें मिलता है इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ हमें मिला डिक्रीजिंग फंक्शन. लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, कभी तो हो सकता है ग्रेटर देन 0 मिलता है, लेस देन 0 मिलता है, कभी इक्वल टू 0 अगर मिला, then at that time the function is neither increasing nor it is decreasing. तो वो टाइम हमारा जो फंक्शन है वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है at this particular point. Then this point x equal to c is called as the turning point. ये turning point है हमारा, or you can also call it as a stationary point. Now suppose you take a graph. अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, राइट, लेट अस ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस. अगर आपको एक टेंजेंट मिलता है लाइक दिस विच इज पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस, अगर ऐसा अगर पॉइंट आपको मिलता है तो हमें पता है कि ये जो हमारा पॉइंट मिला, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, at this particular point, see on this side the function is decreasing, this side the function is increasing, but you don't know what is happening at this particular point. Then this particular point, either you will get a maximum value or you will get a minimum value, and that is why this point is called as a turning point or a stationary point. I hope you have understood this part. Now we can locate the turning point by looking at the points at which derivative is equal to 0, that is dy by dx is equal to 0 या फिर f dash of x is equal to 0. अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया है और अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको पता चलता है इफ द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 आप कंसिडर करोगे तो आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा जहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट है. At these points, if the function has maxima or minima, then these are also called as the extreme values. जैसे अगर ये पॉइंट हमें मिला तो ये पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू. लेकिन अगर आपका इस तरह से ग्राफ होगा and you have a tangent like this, then this point will be a minima. Here the function is increasing, here the function is decreasing. So you get a maxima point, here you get a minima point. तो आपको मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट अगर मिल रहे हैं देन दीज ऑल्सो आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीम वैल्यूज. इसको एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं. नाउ फ्यू नोट्स.
We'll come to the diagram in a minute. The maxima and the minima of a function are not necessarily the highest and the least values of the function in the whole domain. अभी just now मैंने आपको बताया था कि अगर if you look at this particular point A point के लिए हमें point यहाँ मिला है, right? So you get a increasing function, you get a decreasing function. This side you get a increasing function, this side you get a decreasing function. तो ये जो point A है वो maxima point हो गया. उसी तरह से अगर हम ये point B देखें, point B में यहाँ पे अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट हैंड साइड द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नथिंग बट अ मिनिमा पॉइंट. अब अगर हम ये इंटरवल देखते हैं A से लेके B तक इंटरवल हम देखते हैं, तो हमें एक मैक्सिमा पॉइंट मिला, एक मिनिमा पॉइंट मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे इंटरवल में एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा वैल्यू मिले. आपको ज्यादा भी वैल्यूज मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है आप छोटा इंटरवल कंसिडर करो, आप यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ पे इंटरवल कंसिडर करो, देन द मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू विल चेंज. एंड हियर इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे द वैल्यू विल चेंज. सो you can say that the functions, the maxima and minima of the functions are not necessarily the highest and the least value of the whole domain. पूरे डोमेन के लिए ये हमारे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारे छोटे से इंटरवल के लिए मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू है. Actually these are the greatest and the least value of the function in a small interval. Hence the maxima or the minima defined above are also known as local or relative maxima and the local or relative minima of the function fx. तो ये जो हमारे अभी हमने डिफाइन किए हैं दे आर नथिंग बट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्योंकि छोटे इंटरवल के लिए हमने कंसिडर किए हैं. Now there are two ways of finding out the maxima and minima. The first one is the first derivative test. Let us see how the first derivative test work. A function fx has a maxima at x equal to c if the first is f dash of c should be equal to 0. Second is f dash of c minus h is greater than 0. That is fx is increasing for all x less than c value. And you should get f dash of c plus h is less than 0. That is we should get f of x is decreasing for the values of x greater than c. अभी हमने देखा था ना, right? So if you are taking this way, मैक्सिमा के लिए देख रहे हैं तो ये साइड में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये साइड में ये डिक्रीजिंग होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वेयर दिस स्मॉल h इज टेकन एज अ स्मॉल वैल्यू, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. उसी तरह से a function fx has a minima at x equal to c if we have f dash of c is equal to 0, then you should have f dash of c minus h is less than 0. That is fx is decreasing for the functions x less than c, and f dash of c plus h should be greater than 0. That is you should get fx is increasing for the values of x greater than c. Just now we have seen this one also. अगर हमारा ग्राफ इस तरह से है, this is our particular value c, तो यहाँ पे अगर देखेंगे the function should be decreasing on the left hand side और right hand side में ये होना चाहिए increasing, then it is a minima. You can say the function will have a minima at this point. ये हो गया हमारा first derivative test. But mostly when we'll solve the example, we are not going to use first derivative test. We'll be using the second derivative test. So let's see what is the second derivative test. Before that, here is a note. If f dash of c is equal to 0 and you get f dash of c minus h is greater than 0, f dash of c plus h is also greater than 0, or you get f dash of c minus h is less than 0, f dash of c plus h is also less than 0, then this f of c is neither a maxima nor minima. In such case we say x is equal to c is called as a point of inflation. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप छोटा इंटरवल लेते हो, सपोज द पॉइंट c is taken over here, if you are taking a point c in the interval,
सपोज सी पॉइंट इज ओवर हियर, और आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपको क्या मिलता है, या तो दोनों के दोनों इंक्रीजिंग मिल रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीजिंग मिल रहा है, राइट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग मिल रहा है, देन दिस पॉइंट सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, या तो फिर ये दोनों भी डिक्रीजिंग मिल जाए, then you say this point C is not a point where you will get a maxima minima. Such point is called as point of inflation. Let's look at the second derivative test. A function f of x has a maxima at x equal to c if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c is less than 0. मैक्सिमा होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, यू शुड गेट एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज यू शुड गेट एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन 0. ये देखो मैक्सिमा के लिए ये लेस देन 0 होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. The function f of x has a minima at x equal to c if f dash of c is equal to 0 and f double dash of c is ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उल्टा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में अलग होता है. यहाँ क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको नेगेटिव मिला तो आपको मिलेगा मैक्सिमा वैल्यू, अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला तो आपको मिलेगा मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ this note is very important. The note is if f double dash of c is equal to 0, या तो ग्रेटर देन मिला है, लेस देन मिलेगा, ये दोनों में से कोई एक मिलेगा, लेकिन अगर आपको कभी 0 मिला then the second derivative test will fail and you have to go and find the maxima minima using the first derivative test. So अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है देन विल गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सो नॉर्मली विल बी यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द सम्स. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द फंक्शन fx. इन सम ऑफ द एग्जाम्पल fx विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू. काफी एग्जाम्पल्स में आपको fx दिया रहेगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे तो आपको fx फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द function fx. Second step is find the f dash of x and f double dash of x. तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे. Step 3 is consider first order derivative is 0, that is f dash of x is equal to 0 and find the root of the equation f dash of x is equal to 0. तो आपने जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 डाला आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप उसके रूट्स निकालोगे, यू सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. से यू गेट x इक्वल टू c इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. एक रूट मिला आपको, x इज इक्वल टू c. इफ यू गेट दिस यू गो टू नेक्स्ट स्टेप. द स्टेप इज यू पुट x इज इक्वल टू c इन f डबल डैश ऑफ x. ये जो f डबल डैश ऑफ x निकाला था इसके अंदर हम x इज इक्वल टू c पुट करेंगे और चेक करेंगे. If f double dash of c is greater than 0, then f has a minima at x is equal to c. So, अगर आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिला तो आपको मिलेगा f has a minima. And to find the minimum value of f, अगर आपको f का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो आपको x is equal to c यहाँ पे मिला है वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे f of x के अंदर. So you put x is equal to c in f of x. नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे थे, इफ वी गेट f डबल डैश ऑफ c इज लेस देन 0, राइट, देन वी कैन से f हैज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. अगर आपको मिला f डैश ऑफ c नेगेटिव देन यू कैन से f हैज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. एंड टू फाइंड द मिनिमम, सॉरी दिस शुड बी maximum value. To find the maximum value of f, put x is equal to c in f of x. तो f of x के अंदर आप वापस से substitute करोगे. Now we'll apply all these steps in solving the examples. So let's start with exercise number 4.3. Here in exercise 4.3 we are just going to use the steps of finding the maxima and minima. So let's start with the examples. We are looking at group 1 question. Group 1, the question is determine the maximum and the minimum value of the following function
In group 1, we are taking the first sub question. We are given fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. So starting with the solution. Now here we are given the function. Let's take down the function. We are given f of x is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. अब हमारे स्टेप्स के हिसाब से द फर्स्ट स्टेप इज वी वांट एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, सो द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड. नाउ वी गो फॉर द सेकेंड स्टेप. सो इन द सेकेंड स्टेप वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द value of f dash of x and f double dash of x. So let's find out what is f dash of x and what is f double dash of x. So let's see what happens there. So we'll differentiate the function with respect to x. So as we differentiate the function, हमें मिल जाता है f dash of x is equal to 6x square minus 42x plus 36. अब ये तो हो गया हमारा f dash of x. सेकेंड स्टेप में हमें f डबल डैश ऑफ x भी चाहिए. सो लेट्स फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ x. तो हमें मिलता है f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 42. अब हमें क्या चाहिए है, ये फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हमें मिलता है वो फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज. सो फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज वी नो दैट f डैश ऑफ x का वैल्यू होना चाहिए 0. तो हमारे पास f डैश ऑफ x ऑलरेडी यहाँ पे है. विल पुट द वैल्यू ओवर हियर. तो हमें मिल जाता है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. We can take 6 common, so let's take 6 common. बचा हमारे पास x square minus 7x plus 6 is equal to 0. Taking 6 to the other side हमें मिल जाता है and we'll find out the factors of this term. So ये हो जाएगा x minus 1 into x minus 6 is equal to 0. अब ये तो factors हमें मिल गए. This is going to give us two values of x. X is equal to 1 और x is equal to 6. अब हमारे पास रूट्स मिल गए हमें हमारे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन के. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे पास जो x के वैल्यूज हैं ये x के वैल्यूज हम f डबल डैश ऑफ x के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर हमें देखना है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू द आंसर इज ग्रेटर देन 0 और इट इज लेस देन 0. सो लेट्स टेक द फर्स्ट रूट. सो फॉर x इज इक्वल टू 1 हमें पता है f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू है 12x माइनस 42. तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 1. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 42. सो दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 42 विच इज माइनस 30 विच इज लेस देन 0. तो हमें मिला f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0. सो जब ये लेस देन 0 मिलता है हमारे पास है सेकेंड टेस्ट ऑफ डेरिवेटिव. सो एज वी अप्लाई द टेस्ट हमें मिल जाता है वी गेट f ऑफ x अटेन्स मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1. तो हमें मिला यहाँ पे मैक्सिमम है. हमें मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज, अब हम क्या करेंगे हमारे fx के अंदर ये वाला x का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे. सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, वी गेट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20. कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 3. तो हमें मिला f ऑफ 1 का वैल्यू माइनस 3. ये तो हो गया एक रूट के लिए. वी हैव जस्ट कंसिडर x इज इक्वल टू 1. अब हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल टू 6. सो फॉर x इज इक्वल टू 6 अगेन विल सब्स्टिट्यूट एंड सी f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 12x माइनस 42. तो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए थे सेम स्टेप्स अब हम यहाँ कर रहे हैं. सो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 6 इज 12 इंटू 6 माइनस 42 and that value is equal to 72 minus 42 that is 30. अब ये वैल्यू हमें मिला greater than 0. Now since this is greater than 0 by second test of derivative हमें मिलेगा there is a minima. So we can say f of x attains minimum at x is equal to 6. अब हमें मिनिमम वैल्यू की भी जरूरत है तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 6 हम वापस से पुट करेंगे हमारे f ऑफ x के अंदर. सो मिनिमम वैल्यू इज f of 6 and that value is equal to 2 into 6 cube minus 21 into 6 square plus 36 into 6
minus 20. So that is going to give us 432 minus 756 plus 216 minus 20, and that value comes out to be minus 128. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू अगर देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वी हैव गॉट इट ओवर हियर विच इज -3, और मिनिमम वैल्यू हमें मिला है minus 128. So we can say therefore the function f of x has maximum value -3 at x is equal to 1 and minimum value minus 128 at x is equal to 6. So ये हो गया हमारा first question. Now let's look at the things that we have done. We have just followed the steps of finding the maxima and minima. सबसे पहले तो हमें fx चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी fx उन्होंने दिया था तो हमने उसको वैसे के वैसा ले लिया. Now this was a simple sum. When we'll come to word problem, fx आपको दिया नहीं रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है. नाउ सेकेंड स्टेप में हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया. उसके बाद हम गए थर्ड स्टेप हम कंसिडर करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो एफ डैश का वैल्यू हमने निकाला था, वो हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0. वहां से हमें दो रूट्स मिले. जब मैं स्टेप्स सिखा रही थी तब मैंने x इज इक्वल टू सी एक ही वैल्यू लिया था, यहाँ आपको x के दो वैल्यूज मिले हैं, तो दोनों के लिए हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. सबसे पहले x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे f डबल डैश ऑफ x में. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन f डबल डैश ऑफ x हमें मिला f डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 मिला तो हमें मिला f हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो f हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1. एंड वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए f के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 1. सो दैट हैज गिवन अस द मैक्सिमम वैल्यू. उसी तरह से ये हो गया एक रूट के लिए. फिर हमने सेकेंड रूट कंसिडर किया x इज इक्वल टू 6. वी हैव चेक्ड f डबल डैश ऑफ 6 और ये हमें मिला f डबल डैश ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 मिला तो हमें मिला f हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने f ऑफ 6 का वैल्यू फाइंड आउट किया. So we have got the maximum value and the minimum value for our function f of x. I hope you have understood this. Let us take one more sum from this group. So again the sum is determine the maximum and the minimum value for the following function. अब हम second sub question कर रहे हैं. The function given is f of x is equal to x into log of x. So let's start with the solution. So here we are given f of x is equal to x into log of x. हम इसको differentiate करते हैं with respect to x. So we get f dash of x is equal to x into derivative of log x plus log of x into derivative of x. हम यहाँ पे u into v rule apply कर रहे हैं. So that will give us f dash of x is equal to x into 1 upon x plus log of x into derivative of x. हमें मिल गया 1. We'll do the cancellation over here of the x, so that will give us f dash of x is equal to 1 plus log of x. ये तो मिला हमें f dash of x. अब हमें चाहिए है f डबल डैश ऑफ x, तो हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग अगेन हमें मिलता है f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, log ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x. अब हमें मिल गया है f डबल डैश ऑफ x और f डैश ऑफ x. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड दीज टू वैल्यूज, या तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ मिलेगा, दे आर द एक्सट्रीम वैल्यूज. सो फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0. f डैश ऑफ x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो दैट विल गिव अस, दैट इज इफ वी गेट 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज इफ यू गेट log ऑफ x इज इक्वल टू -1, हम लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हैं. log ऑफ e का वैल्यू होता है 1, सो वी हैव पुट दिस इज माइनस ऑफ log ऑफ e. वापस हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं log ऑफ a रेज टू m. सो वी नो log ऑफ a रेज टू m इज m टाइम्स log ऑफ a. सो अप्लाइंग इट ओवर हियर, ये हो गया log ऑफ e रेज टू -1. तो हमें मिला दैट इज इफ log ऑफ x
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू -1। अब लॉगरिथम हम कैंसिल कर देते हैं, सो दैट इज इफ यू गेट x इज इक्वल टू ई रेज टू -1, हम लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करते हैं, एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव दैट इज a रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/a। सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर। तो ये हमें मिल जाता है दैट इज इफ x इज इक्वल टू 1/e। अब हमें x का एक ही वैल्यू मिला है। अब ये एक वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे f डबल डैश ऑफ x के अंदर, दैट इज अवर स्टेप नंबर 4। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है या लेस देन 0 मिल रहा है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1/e, हमें पता है f डबल डैश ऑफ x इज 1/x। पुट कर देते हैं f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू 1/1/e। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर, तो में हमें मिला e। अब e इज अ number, so this number is a positive number, hence we get f double dash of x is greater than 0। तो हमें मिला greater than 0, so we can say f is minimum at x is equal to 1/e। अब ये तो हो गया, हमें मिनिमा मिला यहाँ पे। अब मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज, हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ x में, so that is f of 1/e is equal to 1/e times log of 1/e। वापस हम ये जो 1/e है, 1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं अप्लाइंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस, सो दिस इज 1/e इंटू लॉग ऑफ ई रेज टू -1। अभी हमने लॉग ऑफ ई रेज टू -1 का वैल्यू देखा था, कितना मिला था हमें, ये -1। सो दैट इज 1/e टाइम्स -1 इंटू लॉग ऑफ ई। लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें मिलता है -1/e। तो हमें मिल गया हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ f। सी द स्टेप्स आर सेम, चाहे फंक्शन में u इंटू वी अप्लाई करो, u/v अप्लाई करो, और you apply any other formula, the steps will remain the same। so पहले f of x का f double dash of x find out किया, f double dash x, then f dash of x is equal to 0 पुट करने के बाद x के वैल्यू फाइंड आउट किए, फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने f double dash of x के अंदर, and we have got the minimum, we have got that this value is greater than 0। तो जैसे ही ये greater than 0 मिला, we can say x is having minimum, sorry, f is having minimum value at x is equal to 1/e, और हमने minimum value निकाला by putting x is equal to e in our f of x, and done। I hope you have understood this sum। Let's take next group question। Now next we are starting with word problems। So starting with the first word problem there, example number 2, divide the number 20 into 2 parts such that their product is maximum। अब देखते हैं हमें दिया क्या है सम में। हमें दिया है नंबर 20। अब हमें क्या करना है, ये नंबर 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सो वी वांट टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। और ये 2 पार्ट्स के बारे में क्या दिया है, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ये हमारा कंडीशन है, द प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम। तो ये जो नंबर 20 है उसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं। सो इन द सॉल्यूशन let us take one part be x, then the other part will be 20 minus x। तो अगर हमने ये 20 का एक पार्ट x ले लिया, x प्लस सपोज यू से y इज इक्वल टू 20, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो एक पार्ट हमने x लिया तो दूसरा पार्ट हो जाता है 20 माइनस एक्स। सो हियर वी हैव वन पार्ट इज x एंड द अदर पार्ट इज 20 माइनस एक्स। अब देखते हैं हमें कंडीशन क्या दिया है। कंडीशन हमें दिया है देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो देयर प्रोडक्ट इज द कंडीशन, सो वी आर गोइंग टू कॉल देयर प्रोडक्ट एज अवर f of x। so f of x is equal to multiplication of the 2 parts। तो ये हो जाएगा x multiply by 20 minus x। अब हमें मिला हमारा f of x। आफ्टर वी हैव गॉट अवर f of x, हमारे सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। हम फाइंड आउट करते हैं f dash of x। So before that we'll just open up f of x। f of x is 20x minus x square। So f dash of x हमें मिलता है 20 minus 2x। We'll find out what is f double dash of x। So f double dash of x हो जाता है -2। अब we want the product to be
मैक्सिमम मतलब हमें चाहिए है एक्सट्रीम कंडीशन. सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. वी कैन टेक 2 कॉमन, सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू 0 गिविंग अस x इज इक्वल टू 10. हमें x का वैल्यू मिल गया. अब ये x का वैल्यू हम f डबल डैश ऑफ x के अंदर पुट कर देते हैं. So if x is equal to 10, f double dash of x is equal to minus 2. x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10, तो ये हो जाता है f double dash of 10 is also equal to minus 2. हमें मिला this value is less than 0. So less than 0 है तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से f of x attains maximum at x is equal to 10. और हमें यही चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू, राइट. सो इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10. तो हमें एक पार्ट मिल गया 10, तो दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा. सो देयरफॉर द टू पार्ट्स ऑफ 20 आर, एक पार्ट अगर 10 है तो दूसरा हो जाता है 20 माइनस 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10. सो द टू पार्ट्स ऑफ 20 आर 10 एंड 10 एंड द सम इज डन. आई होप यू अंडरस्टूड. See, the steps remain the same. Only thing is, अब ये जो फंक्शन था ये फंक्शन हमने निकाला है, प्रीवियसली फंक्शन दिया था. Let's take another problem. We are looking at question number 3. Let's look at the question. A metal wire of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimension when its area is maximum. अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है. सबसे पहले तो हमें एक मेटल वायर दिया है जो कि 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये हमारा 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर लॉन्ग. फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको बेंड करके बना रहे हैं एक रेक्टेंगल. सो दिस इज अवर रेक्टेंगल दैट वी आर फॉर्मिंग बाय बेंडिंग दिस. तो इसी को बेंड करके ये मिला है. तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा हमें मिल जाता है, ये हमारा वायर. सो इसका अगर पेरीमीटर हम देखें तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 36. सो वी कैन यूज दैट कंडीशन. नेक्स्ट हमें क्या और एक दिया हुआ है कंडीशन, वी वांट टू फाइंड आउट द डायमेंशंस. तो इसके डायमेंशंस मतलब इसका लेंथ हमें चाहिए है और इसका ब्रेड्थ हमें चाहिए है, सो दैट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. So let's write down that we are going to consider the length is equal to x and let us consider the breadth is equal to y. Okay, so these are in centimeters. So in the solution let x be the length and the y be the breadth of the rectangle. तो कंडीशन क्या है, ये जो हमारा रेक्टेंगल किससे मिला है, ये वायर से, जिसका की लेंथ कितना है 36. अभी मैंने बताया आपको कि इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का, द पेरीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर. सो वी कैन से दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36. पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ. सो दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36. लेट्स टेक 2 कॉमन, तो हम लिख सकते हैं विल टेक x टू द अदर साइड. सो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 2x. That will give us 2y is equal to 2 into 18 minus x, giving us y is equal to 18 minus x. इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसके एरिया के बारे में दिया हुआ है. सो नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, लेकिन y का वैल्यू हमारे पास है तो हम पुट कर देते हैं, तो ये मिलता है x मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस x. नाउ इफ यू लुक एट दिस फंक्शन, ये अगर हम फंक्शन देखें ये पूरा x में मिल गया है. सो लेट अस कॉल दिस फंक्शन एज f ऑफ x. तो हमें मिला f ऑफ x इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर. जस्ट ओपनिंग अप दिस ब्रैकेट. अब fx मिलने के बाद वी कम टू आवर स्टेप्स. सेकेंड स्टेप इज f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x इज 18 माइनस 2x. हम फाइंड आउट करते हैं f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस 2. अब for the extreme values you can say f dash of x is equal to
0. सो इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमें मिलता है 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, गिविंग अस 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 9. अब हम ये x का वैल्यू पुट करके देखते हैं एफ डबल डैश ऑफ x के अंदर. सो एफ डबल डैश ऑफ 9 का वैल्यू भी मिलता है -2 विच इज लेस देन 0. तो हमें मिला द एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 9. अगर x हमारा 9 है तो इक्वेशन 1 के हिसाब से हमें मिलता है y इज ऑल्सो इक्वल टू 9. तो हमें लेंथ मिल गया, हमें ब्रेड्थ मिल गया. तो वी कैन से देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया होता, यूनिट्स दिया होता, तो हम यहाँ पे यूज करते यूनिट्स. अगर ये यूनिट्स और सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हम ये सेंटीमीटर के जगह पे लिखते यूनिट्स. Whatever the units they are considering, we'll write it over here. I hope you have understood the sum. Let's take another question. So if you look at this particular rectangle, हमें मिला length is equal to breadth. So अगर length is equal to breadth है तो हम बोल सकते हैं it is a square. Sometimes the question may come that prove that it is a square. Okay, if this is happening then it is a square. Then सिर्फ देखना है लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू सेम है या नहीं, एंड इट बिकम्स अ स्क्वायर. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. सो एक्सरसाइज वी आर लुकिंग एट सम नंबर 4. द क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज रुपीज x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड द प्राइस इज रुपीज 180 माइनस x पर यूनिट. फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. वी आर गिवन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम, मतलब अगर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दिया है ये. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 5. तो ये जो है वो क्या है, कॉस्ट है. सो यू कैन से दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आवर नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट हमें दिया है the price is this. So price is rupees 180 minus x per unit. अब ये प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने यूनिट्स बनाए हैं उनको हम सेल कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 माइनस एक्स पर यूनिट, और हमें चाहिए है प्रॉफिट. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो इन द सोल्यूशन लेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी x. तो हम जो यूनिट सेल कर रहे हैं उसको हमने लिखा है x. अब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ऑफ ऑल द x यूनिट. सो लेट्स राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज CP. कॉस्ट को हम CP लिखते हैं. सो दैट इज इक्वल टू रुपीज x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस. अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस फॉर द प्रॉफिट. सो बट वी आर गिवन दैट the price is rupees 180 minus x per unit. ये per unit के लिए दिया है. So if it is given for per unit, we can find out the selling price of x unit. So x unit के लिए क्या हो जाएगा, whatever is the selling price, it is multiplied with the number of units. So that is 180x minus x. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होता है 180x minus x square. That will do later. अब हमें चाहिए है प्रॉफिट. देन प्रॉफिट अगर हम लिखते हैं f of x, so f of x is equal to selling price minus cost price. हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है f of x is equal to this is 180 minus x into x minus of cost price. cost price हमारे पास है x square plus 60x plus 50. फिर ओपन अप द ब्रैकेट ओवर हियर तो हमें मिल जाता है 180x minus x square minus 60x minus 50. So after opening up the bracket, taking all the addition and subtraction, so that will give us 120x minus 2x square minus 50. ये हो गया हमारा f of x. This is our f of x. अब हम फाइंड आउट करते हैं f dash of x. So f dash of x is equal to 120 minus 4x. हम फाइंड आउट करेंगे f double dash of x which is equal to minus 4. अब हमें f dash of x मिला, f double dash of x मिला. हमें चाहिए है मैक्सिमम प्रॉफिट.
that is we want the extreme values. So for extreme values we can say f dash of x is equal to 0. f dash of x का value put कर देते हैं. So we get f dash of x is equal to 0 if 120 minus 4x is equal to 0. That is if we get x is equal to 30. 4x वो साइड लेके कैंसिलेशन करने के बाद we get x is equal to 30. अब हम x इज इक्वल टू 30 पुट करते हैं हमारे f डबल डैश ऑफ x के अंदर, तो हमें मिलता है f डबल डैश ऑफ 30 इज इक्वल टू -4 विच इज अगेन लेस देन 0. सो वी कैन से प्रॉफिट f ऑफ x इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 30. लेकिन x क्या था हमारा? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सेल. सो हेंस द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 30. सो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट. एंड few sums are remaining of this exercise, that is your assignment. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.